Have you ever wondered why are there so many IPOs being listed? Well, in the comment section you have given, and clearly you want to know the answer why. So watch this video till the very end to understand why are there so many IPOs being listed in such a short period of time. Shall we start? Let's go. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets, and today I'm going to tell you that why are there so many IPOs being listed और हम इसको बहुत logically समझेंगे. Now before starting this video, I need to give a disclaimer. ये वीडियो ना थोड़ी ज़्यादा in depth research वाली हो सकती है. It can मतलब basically what I mean to say that this video can get a little boring for some. This video can get a little too theoretical for some. If you're that person जिसको ज़्यादा theory पसंद नहीं है, who does not like the research aspect of stock markets, then my friend don't worry, I will see you in the next video. On the other hand, if you are someone who loves research, जो मुझे बोलेगा हर स्टॉक मार्केट के दोस्त हम इधर रखते हैं. If you are that person, my friend, तो आ जाओ शुरू करते हैं. Let me tell you why are there so many IPOs being listed. Now let me share the screens with you. Now check this out. Now this website, Chittorgarh, it's actually a very nice website. You should always use this website. Take it, not always, but I like it. अब आप देखोगे, I found the list of IPOs. Now you see, let me click 2020. अब 2020 में, from November, December itself, we had Gland Pharma, Burger King, Mrs. Bectors, Antony Waste. ये IPOs आए थे. अब 2021 में कौन से IPOs आ गए थे? 21 में IRFC, the Indigo Paints, Home First Finance, Stovecraft, Nureka, Railtel, then MTAR, Anupam Rasayan, Craftsman, Lakshmi Organic, मतलब भर कल्याण ज्वेलर्स, NASA Technology, भर के IPOs have been listed, right? As you can see them all here. Now let me stop sharing the screens. अब ऐसा क्यों है? Why does this happen? What is the reason for this? Very simple. सिंपल ये है इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई. हर चीज डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड करती है. क्यों? अगर द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स डिमांडेड इज वेरी हाई तो लोग आईपीओस निकालेंगे. क्यों? उनको पता है कि पब्लिक इशू जब निकालेंगे यू विल बाय इट, वी विल बाय इट. सिंपल. सो अभी इन दिस सिचुएशन जब भी देखोगे व्हेनेवर मार्केट्स हैव एक्सट्रीमली हाई डिमांड, व्हेन पीपल आर हंग्री फॉर शेयर्स, ये जो शेयर दे दो बॉस खरीदने को रेडी हम, तब भर के IPOs are issued. And it's not only now, it happens in every country of this world जहाँ पे stock exchange listed है since the time stock markets have started. Simple आपको example देता हूँ. If suppose let's assume I open a restaurant of tandoori chicken. मैं tandoori chicken restaurant खोल रहा हूँ. Now will I go and open that restaurant in Gujarat? Of course not. Why? Because Gujarat में majority of the population is on a vegetarian diet. Will they go to the restaurant? They will not. So अब देख लो डिमांड सप्लाई क्या है, वहाँ पे डिमांड ही नहीं है. बट आई कैन टेक दैट सेम तंदूरी चिकन रेस्टोरेंट एंड ओपन इट इन दिल्ली एंड और यूपी और हरियाणा और पंजाब जहाँ पे नॉन वेज ईटिंग पॉपुलेशन है. एंड या बीइंग अ दिल्लीइट, द ओनली एग्जांपल दैट केम इनटू माइंड वाज तंदूरी चिकन रेस्टोरेंट. ओके, एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, तो डिमांड कॉन्सेप्ट समझ गए. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट हर्ष, व्हाई इज डिमांड ह्यूज? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Whenever the markets are sitting at peaks, again whenever the market sitting at all time highs, peaks, जब sentiment bullish है, जब when you are making profits, your friend is making profit and everyone's long term portfolio is profitable, of investors who are knowledgeable and of investors who are not knowledgeable, if everyone is gaining money, everyone is having a profit, what does it mean? The sentiment is positive. We are in a massive bull run and that is when the demand increases. क्यों? उस समय everyone wants to come into stock markets and the reason what's happening right now कि हर आदमी अब stock markets में ही आना चाहता है. Simple reason for you to understand. आप बोलोगे हर्ष, how can I factor this out? Simple आपको बताऊँ, look at the finance influencers. Instagram में देखो, new people are coming. हो सकता है you want to start your own finance influencing, यहाँ पे आप YouTube वीडियो Instagram start करो, which is great, right? But ये हमारे लिए बहुत certain indicators हैं that why are people doing this? Because की demand है, लोग इसको चाहते हैं, they want more information, so then more and more people are helping you out to make that demand fulfill. तो आप समझ रहे हो? तो when are so many IPOs listed? When there is high demand, that's the first reason. ठीक है, high demand क्यों होती है? Why? Because of this reason that when the markets are all time high, the sentiment is very positive. हर चीज सिर्फ sentiment है. ठीक है. Now let me give you the second reason. Now the second reason is that when the market valuation is higher than the intrinsic value. When the market valuation is higher than the intrinsic value. Now what is the intrinsic value? If suppose, whenever you do fundamental analysis, whenever you talk to hedge fund managers, they will always talk about intrinsic value. Intrinsic value is the true value.
ठीक है. सो इंट्रिंसिक वैल्यू कैन यू कैलकुलेट इट? टेक्निकली यू कैन नॉट. हाँ, बहुत एल्गोरिथम्स हैं दैट ट्राई टू कम क्लोज टू इट, बट टेक्निकली यू कैन नॉट. व्हाई? बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू इज बोथ क्वालिटेटिव एनालिसिस प्लस क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव क्या हो गया? टॉप लेवल मैनेजमेंट, गुडविल ऑफ द कंपनी, द कस्टमर लॉयल्टी, समथिंग यू कैन नॉट पुट इन नंबर्स. क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या हो गया? समथिंग दैट इज पुट इनटू नंबर्स. एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट कवरेज. राइट? तो दो चीजें हो गई. नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? दोनों क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को मिलाओ, देन यू गेट द इंट्रिंसिक वैल्यू. सो कैन यू कैलकुलेट इट? जनरली नहीं, बट दैट्स अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू का एक डिफरेंट टॉपिक है. नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली मीन्स द ट्रू वैल्यू. राइट? अब जैसे आई गिव एन एग्जांपल हाउ टू एक्सप्लेन. अगर जस्ट यस आई नो मैं थोड़ा ऑफ रूट जा रहा हूँ, बट मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू समझाना है सो दैट यू अंडरस्टैंड इट. आई ऑलवेज यूज टू यूज ए MI फोन. ठीक है, मैं रेडमी का फोन यूज करता था, ये मैंने अपनी वीडियो में बोला था. क्यों? मेरे लिए ठीक है, ये 15,000 का फोन है, नोट 5 Pro, एंड आई एम हैप्पी विद इट, आई डोंट नीड इट एंड इट्स ओके. तो मुझे सेंस बनता है. अब बिकॉज अब मैं इंस्टाग्राम में कंटेंट डाल रहा हूँ, वहाँ डाल रहा हूँ, और मुझे हो रहा है कि अब आई नीड अ बेटर कैमरा, दिस फोन इज नॉट सफाइसिंग. नाउ आई हैव बॉट अ iPhone 11. राइट? एंड दिस इज नॉट अ प्रो, दिस इज जस्ट iPhone 11. आई हैव नॉट बॉट iPhone 11 12. क्यों? अब ये मुझे पड़ा था अराउंड 60,000 का फोन. आई बॉट iPhone 11. क्यों? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है. अब 60,000 का मैं ले रहा हूँ, बट इसकी ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? आई एम गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ मे बी 80,000, 65,000. यू विल ओनली बाय समथिंग जब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू दूसरी चीज की ज्यादा होगी. सिंपल. एट दैट टाइम पहले वाई डिड आई बाय रेडमी फोन? वाई डिड आई बाय रेडमी नॉट एन iPhone? क्यों? उस टाइम के लिए मेरी आईफोन की नीड नहीं थी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम थी. मेरे हिसाब से 60,000 का पैसा वेस्ट. बट अभी उस टाइम के लिए मेरी रेडमी फोन बहुत था. अब things have changed. So have you understood the concept of intrinsic value? I hope that's clear. ठीक है? Okay, coming back. So whenever in the situation market valuations are higher than the intrinsic value, तो होता क्या है? New companies have an opportunity to launch their IPOs at good valuations. New companies, जो companies होती हैं which have been planning to launch an IPO for, I'm sure it must be years. You can't just do IPO launch परसों नहीं होता. You have to, it's an entire year's planning. You have to choose the merchant banker, you have to choose the investment banker, you have to choose the registrar. बहुत इसमें वो चीज़ें होती हैं, right? You have to get all the clearances. तब होता है. But जब ये टाइम होता है ना, जब market valuation higher than intrinsic value, this is a great time to enter with an IPO, and that is why so many people are coming to IPOs. Now let me show you a simple cycle. Let me share the screen with you. Okay, now I'm sharing the screen with you. अब आप देखोगे, यस मैंने ग्राफ पहले बना लिया बिकॉज आई डोंट वांट यू टू सी हाउ बैड माय ड्राइंग इज. सो मैंने ग्राफ पहले बना लिया. नाउ यू सी इट्स अ सिंपल स्टॉक मार्केट साइकिल. अब आप देखोगे जनरली हमेशा होगा कि जो ये फेज होगा ना, दिस फेज, इस फेज में देर विल बी ऑलमोस्ट नो IPOs. देर विल बी नो IPOs. इन द फेज जहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, देर विल बी few IPOs that will come into the picture. And this is not only right now, this is कभी भी आप ले लो, in whatever country you take, मतलब obviously stock markets has to be well established there, and whatever situation you take, whatever you take, हर बार यही होता है. And when the market start catching up momentum, कि एकदम ही बुल रन में मार्केट है, इस फेज में यहाँ क्या होता है? the IPO market starts to gain momentum, और this is the golden phase जो यहाँ पे मैंने ग्रीन से डाल रखा है. इस फेज में क्या होगा? There will be IPOs and IPOs and IPOs जो अभी हो रहा है, and there will be record breaking IPOs. इधर आओ, hint. The biggest IPO of Asia is coming out, LIC. Right? So आप देख रहे हो क्या हो रहा है? This happens every time. So अभी यहाँ पे क्यों हो रहा है IPOs list? Why is it being listed here? अब यहाँ पे समझिए क्यों? इस एरिया में demand is very high. In this situation, लोगों का sentiment is very high. Why? Because everyone is bullish. Everyone has seen this bull run. तो लोगों का sentiment बहुत ज़्यादा high है. दूसरी चीज़ एक और है, इस एरिया में the market valuations are much higher than the intrinsic value. That is why. और अभी वो सब हो रहा है. Now let me show you चित्तौड़गढ़ वेबसाइट. Let me show you simple वेबसाइट. ठीक है, इस वेबसाइट में आता है. अच्छा, अब चेक दिस आउट. ये चित्तौड़गढ़ वेबसाइट है, यहाँ से मैंने इनका सब डेटा एक्सट्रैक्ट किया है. और यहाँ पे आप देखोगे इट्स सिंपल थिंग कि IPOs फ्रॉम 2007 टू 2021 कितने आए हैं. अब नाउ नोटिस दिस. इन 2007 the amount raised was 33,946. In 2008, it is 18,339 crores. Again, all figures are in crores. अब 2007 में तक क्यों था? Because if you see the graph of Sensex, अगर यहाँ पे Sensex graph, अब अगर ये मैं Sensex graph देख रहा हूँ, in 2007 we were in this phase.
ठीक है, दिस इज सॉरी दिस इज 2018 इन दिस इज हाँ 2007 वी वर इन दिस, आप देख रहे हो ये यहाँ पे व्हाट इज द डेट राइट हियर, इट्स यहाँ पे आ जाते हैं 2007 दिस इज जनवरी 2007 फेब 2007, यहाँ से 2007 वाज एक्सट्रीमली बुलिश, ठीक है। इस टाइम पे आईपीओस की क्या वैल्यूएशन लिस्ट हुई, लेट मी जस्ट, इस टाइम पे आईपीओस की वैल्यूएशन हुई 33,000 करोड़। इन 2008 the valuation of IPOs amount raised was 18,000 crores. अब now look at this interesting fact, ठीक है। अब आप देखोगे all the IPOs majority Jan, Feb, March, April, उसके बाद मई, जून, उसके बाद अगस्त, सितंबर खत्म। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में IPOs आए ही नहीं हैं। क्यों नहीं आए? वाई इज दैट? बिकॉज मार्केट स्टार्टेड करेक्टिंग। जब मार्केट्स इधर आता है अप्रैल मई में, तो नोबडी वांट्स टू बाय एन IPO। अब देख लो, आर यू सीइंग द डायरेक्ट कोरिलेशन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। नाउ लेट्स सी द करंट ईयर्स, अभी इस साल का टाइम लेते हैं, लेट्स टेक दिस ईयर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 2008, मैं पीछे जा रहा हूँ, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर वाचिंग दिस वेरी केयरफुली, ठीक है। अब लेट्स ओपन 2019, सॉरी पहले 2019 खोले, पहले वैल्यूएशन देखते हैं। 18,000 करोड़ यहाँ पे उठाया था, 2009 में 19,000 करोड़, करते टू 2012, 2011, 2013, 2014, ये वो टाइम क्या था? ये वो टाइम तब था व्हेन आई एंटर स्टॉक मार्केट्स एक्चुअली इन 2010। और उसके बाद सब मुझे बोलते थे स्टॉक मार्केट में कोई दम ही नहीं है, कुछ वो ही नहीं है, स्टॉक मार्केट्स कभी ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट्स वर इन अ स्टैगिश फेज राइट हियर वेयर देयर वाज नो रियल डिमांड एज सच, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी आईपीओस भी ज़्यादा लिस्ट नहीं हुए। अब उसके बाद मार्केट स्टार्ट टू कैच पेस। आप देखोगे इन 2020 व्हेन द मार्केट स्टार्ट टू कैच पेस, 26,000 करोड़ फंड्स रेज हुए हैं, ठीक है। 2020 के आईपीओ आपको, लेट मी शो यू, 2020 के आईपीओ आपको दिख जाएंगे, एंथनी वेस्ट, मिसेस बेक्टर्स, बर्गर किंग, ग्लैंड फार्मा, एंड सो मच सो दैट हर जैसे ही आता है, हर यूट्यूबर आईपीओ में वीडियो बनाता है, एंड आई एम गिल्टी ऑफ दिस बिकॉज ये इजी लो हैंगिंग फ्रूट है। इसमें इट्स अ सर्टेन ट्रेंडिंग टॉपिक और आपको व्यूज मिल ही जाएंगे, टेलिंग यू द यूट्यूब साइड ऑफ इट, ठीक है। कमिंग बैक टू द इन्वेस्टर साइड ऑफ इट, दिस वाज 2020। नाउ लुक एट 2021, मैं पीछे आ रहा हूँ दोबारा। अब आप देखोगे 2020 में there was 26,000 करोड़, in 2021 it is 15,000 करोड़ only, and till March itself 2021 में 15,000 करोड़ have been raised by IPOs। आप इसका मतलब समझ रहे हो? And just look at this is crazy। अनुपम, रसायन इंडिया, क्राफ्ट्समैन, लक्ष्मी, कल्याण ज्वेलर्स, नाजरा, देन बारबेक्यू नेशन, मार्च में ही 3rd मार्च, 8th मार्च, 12th मार्च, 15th मार्च, 16th मार्च, 17th मार्च, 24th मार्च। I have never seen this. Generally, I'm telling you, जब से markets में active हूँ since 2010, I have not seen so many IPOs being listed. Yes, theoretically I've read कि ऐसा होता है, but मैंने पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। In 2008, of course, I remember हो रहा था, but उस समय 10th में था तो ज़्यादा मैं focus नहीं किया था, obviously, right? So, are you observing a pattern? आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? What is the situation? हो सकता है like in 2008, the same situation is going to be in 2021, जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही IPO लिस्ट होंगे, उसके बाद it will crash। हो सकता है, you can't say, but this मतलब ये जो फैक्ट है ना, ये सब रिसर्च में आता है, जो एकदम it will, if you think about it, it will open a lot of possibilities। आपका I want to generate the rounds of thought in you कि यार आप जाओ और गूगल करो, यूट्यूब करो, लिखो, मुझे बोलो हर्ष मैंने ये टॉपिक रिसर्च किया, मुझे मजे आ गए, राइट। अब लेट मी टेल यू अनदर थिंग। नाउ द अदर थिंग विच आई टोल्ड यू, यहाँ पे क्या होता है, बिगेस्ट आईपीओज आते हैं, बिगेस्ट आईपीओज लाइक LIC इज रूमर्ड। वैसे टू बी वेरी फेयर, LIC इज बीन रूमर्ड सिंस क्वाइट सम टाइम नाउ कि LIC आने वाला है, बट वो कब आएगा? तो वो तब आएगा जब आईपीओ खरीदने के लिए लोग रेडी होंगे, व्हेन पीपल आर हंग्री फॉर इट। यही सिचुएशन हुई थी 2008 व्हेन आर पावर वाज लॉन्च, रिलायंस पावर जब लॉन्च हुआ था ना 2008 में, आई स्टिल रिमेंबर, मैं 10th क्लास में था और हमें स्कूल में मिलते थे बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं, सॉरी हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया का आते हैं स्कूल में, एंड में कॉपी, एंड देयर वाज नो बिजनेस पेपर इन इट। तो ऑब्वियसली बिजनेस पेपर में देखता था कि अब तो स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है ऐसी, एंड ऑल्सो ट्राइंग टू बी कूल इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स की इच्छा है, मुझे इसका मतलब पता है। बट वहाँ पे आई रिमेंबर जब 2008 में ना रिलायंस आर पावर का IPO था, ये हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया हर जगह था, स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अबाउट इट, टीचर्स वर टॉकिंग अबाउट इट, वो उसका इस लेवल पे हाइप था। इफ यू आर समवन हु हैज बीन एक्टिव इन द मार्केट्स इन 2008, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ यू नॉट समवन, तो एक्चुअली एक बार गूगल करो, यूट्यूब करो, देखो रिलायंस पावर क्या था। नाउ आई हैव जस्ट गूगल्ड रिलायंस पावर का IPO, एज यू कैन सी हियर 11th February 2008 में रिलायंस पावर का IPO आया था। इट वॉज अ मेगा IPO,
ठीक है, और पीपल वो एक्सपेक्टिंग सो मच आउट ऑफ इट, सो मच था कि ये आईपीओ तो जिंदगी बदल देगा, दुनिया बदल देगा, तो जज्बात बदल देगा, दुनिया बदल देगा, वो आप समझ रहे हो वाला मीम, वो मीम समझ रहे हो, ठीक है। तो वो आईपीओ था एंड फेयरली सो एवरीवन बॉट इट। अब उसके बाद सॉरी मैं दोबारा से आ रहा हूँ, उसके बाद हुआ क्या, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीनर ऑफ रिलायंस पावर। हाँ, नाउ दिस इज रिलायंस पावर, द मार्केट वॉज 240, अब वो रिलायंस पावर की अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, 4 रुपीज़ 70 पैसा। तो आई एम नॉट सेइंग रिलायंस पावर इज बैड, आई एम सेइंग आप कुछ फ्यू पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहे हो। Now let me stop sharing the screen. Whenever there are massive IPOs launched, Reliance IPO launch हो रहा है और ऐसी न्यूज़ आ रही है कि अब एक IPO आ रहा है which is the world's biggest IPO, Asia's biggest IPO, record breaking IPO आ रहा है, that is a very very major sign that the market is not doing well. मैंने एक वीडियो बनाई थी दैट क्राउड्स नेवर अर्न स्टॉक मार्केट, इफ यू लाइक दिस नाउ वॉच दैट वीडियो फॉर श्योर, बिकॉज उसमें भी सेम ही चीज़ है, मतलब मार्केट का रूल सेम ही है, मैं आपको डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रूल सेम ही है दैट यहाँ पे जनता पैसे नहीं कमाती। अगर यहाँ पे हर आदमी स्टॉक मार्केट में घुस के आ गया है, इसका मतलब क्या है, मार्केट्स आर ओवरबॉट, यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम पार्टिसिपेशन, आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व दिस वर्ड्स, एक्सट्रीम participation. Whenever there's extreme participation in stock markets by the retail investors will always lose money at the time that the markets are crashing. Now I know this is sad, but this is how behavioral finance works, this is how psychology works. So yeah, this is it. So I hope you liked the video, I hope it wasn't too technical for you. वैसे recent video you just commented so many comments that you want more complicated stuff, so that's why I'm picking you this. And if you want more interesting research like this, I keep doing research like this. But generally जब मैं किसी को ये रिसर्च बताता हूँ ना, अच्छा ये देखो, ये पैटर्न ऑब्जर्व करो, ये करो, तो लोग बोलते हैं अरे हर्ष प्लीज माफ कर दो मुझे, बट आई डोंट नो हाउ मच विल यू अप्रिशिएट इट इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ रिसर्च वीडियोस, बिकॉज आई नो दे कैन गेट अ लिटिल मोनोटोनस, दे कैन गेट अ लिटिल लॉन्ग एंड दे कैन गेट अ लिटिल टू इन डेप्थ, बट आई लव इट. सो इफ यू आर इन दैट सिचुएशन, तुम मुझे नीचे लिखो दैट हर्ष आई लव इट, जस्ट नीचे कमेंट कर लिखो हर्ष आई लव इट, सो दैट आई कैन ब्रिंग यू मोर इंटरेस्टिंग रिसर्च लाइक दिस. एंड चैनल में और वीडियोस हैं, डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो, व्हाई डू क्राउड्स डोंट अर्न इन स्टॉक मार्केट, इस वीडियो खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा. And yeah, so that is about it. My name is Harsh Goela. Give my regards to your elders. Give my love to your young ones. This is Goela School of Finance, financially empowering you.